Hello my dear students, I hope you are doing well. In this video, we'll discuss how you can attempt the English section in the examination so that you can maximize your score. And yes, it is obviously possible to score 25 plus and of course 30 also, right, in the prelims. Fine. And for a detailed strategy on how to tackle the English section, you can check the description box. You will find the link there, right? In that video, I have discussed a detailed strategy of English, and today in this video, we will just discuss on how to attempt the paper in the examination. So let us have a look at the probable topics first. Fine. So here we can see in the prelims section, prelims part of English section, we can see RC, close test, and these topics. Fine. These are the topics which are probable, right, which have a probability of coming. Fine. And one more thing is that there can be a combination of the topics, like RC, they can give 5 to 10 questions from RC. Alright, close test में भी आपको 6 to 7 या 6 to 8 मिल सकता है. Rest will be a combination of the other topics, like filler based questions आ सकता है, right, like double fillers it can be, triple fillers. Fine. Or it can be paragraph fillers or sentence fillers. Are you getting my point? Fine. Filler based. It can be anything. Now, error based or sentence improvement. These are almost same, right? You just have to find the error. In case of error detection, in case of error correction, you have to correct the sentence. And similar to error correction is sentence improvement. A sentence will be given and you have to improve the sentence. Fine. And if there is no improvement, you can just mark no improvement required, right? So these are the main error based topics. Now column matching based, there can be columns and there can be, see, I already said there can be a combination of the topics other than RC and close test. So in सब में combination भी आ सकता है. How? But generally you don't find such new patterns in the prelims. Fine. क्या आ सकता है जो मेंस में दिखने को मिल सकता है कि जो कॉलम मैचिंग है, कॉलम के साथ आपको फिलर्स मिल सकता है. फाइन. Getting my point? I will take session on it, no issue. I will take live class on it. Fine. So column based आ सकता है, match the column. Then comes parajumbles or sentence rearrangement, right? Parajumbles आप तो जानते ही होंगे. पैराजम्बल्स पे मैंने बहुत सारा वीडियो दिया है. फाइन. पैराजम्बल्स पे मैंने क्लास लिया है और हाउ टू सॉल्व पैराजम्बल्स उसका भी वीडियो मिल जाएगा, आप चेक कीजिए चैनल पे. सेंटेंस रीअरेंजमेंट मैंने कराया है लाइव क्लास में. सेंटेंस रीअरेंजमेंट अलोंग विथ एरर्स मेंस के लिए जो मैंने क्लास कराए थे. फाइन. सो दिस कैन बी सीन. फाइन. द बेसिक फॉर्म, राइट. अच्छा, उसके बाद क्या मिल सकता है देखने को? फ्रेज रिप्लेसमेंट पूछता ही है, right? Then word replacement, or we can say word rearrangement also. Fine. Interchanging of words, which we say, right? Word replacement or word rearrangement or interchanging of words. Are you getting my point? So these are the probable topics that can be asked in the prelims. Are you getting my point? Now comes how to attempt the paper in 20 minutes time. You are getting just a sectional time of 20 minutes, right? Earlier there used to be no sectional time. Fine. So 20 minutes जो टाइम है उसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा. फाइन. पहले से आपको प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपको क्या होगा, आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा. उसका इफेक्ट उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है उसका इफेक्ट बाकी दो सेक्शन में पड़ सकता है. फाइन. सो इन 20 minutes टाइम the order which I am saying, you need to follow it, right? Please try to follow it because this is a tried and tested, right? Fine. This is a tried and tested method because with the same strategy I was able to score 30 out of 30 in prelims, not 1 or 2 prelims. In many prelims I have scored 30 out of 30 in English. Fine. Okay. And in IPS PO mains my score was 32.75 out of 40. Okay. So
मैंने 6 क्वेश्चंस छोड़ दिया था, फाइन। उसके बाद जो गलत हुआ, गलत होके ये 32.75 सिली मिस्टेक्स आई हैड कमिटेड। सो 32.75 आउट ऑफ 40 इन पीओ मेंस, ओके, पीओ मेंस नॉट प्रीलिम्स, क्योंकि पीओ मेंस में तो आपका 40 क्वेश्चंस रहता है, मतलब सॉरी 40 मार्क्स रहता है, नॉट एग्जैक्टली क्वेश्चंस, एंड इसमें तो 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, प्रीलिम्स में 30 आउट ऑफ 30 मिला था। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि फॉलो माय स्ट्रेटेजी। आपको जरूर जो आपका स्कोर रहेगा उससे भी ज्यादा आपको मिल सकता है, फाइन, इफ यू फॉलो दिस ऑर्डर, पर्टिकुलर ऑर्डर। क्या ऑर्डर है देखिए, पहले आपको जो सिंगल क्वेश्चंस रहता है, फाइन, इट कैन बी एरर बेस्ड, इट कैन बी फिलर बेस्ड, फाइन, वो कीजिए। 5 मार्क्स आपका यहां से स्कोर हो गया, फाइन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड प्लीज फॉलो द टाइम स्लॉट विच आई एम मेंशनिंग। 5 मार्क्स आपका यहां से स्कोर हो गया, फाइन। अच्छा, नेक्स्ट जो भी सिमिलर जो वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन होगा, मतलब एरर हो या रीअरेंज, नो नॉट रीअरेंजमेंट, एरर हो या फिलर्स हो, फाइन, यहां से भी आपका 5 मार्क्स आ गया। और एक और टॉपिक जो रहेगा उससे 5 मार्क्स आ गया, लाइक इट कैन बी वर्ड रीअरेंजमेंट, लाइक, आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट? सो इसमें आपको बस 9 मिनट्स ही देना है, नॉट मोर देन 9 मिनट्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्यों, मैं बताऊंगा, आई एम कमिंग टू दैट, फाइन। Within 9 minutes, you need to complete these first 3 topics. And please mind it, first 3 मतलब एग्जाम में अगर आपका आरसी आ जाए फर्स्ट, फाइन, पेपर जो जब ओपन होगा, फाइन, इंग्लिश सेक्शन, अगर आपको आरसी देखने को मिलता है, डोंट डू इट एट फर्स्ट, प्लीज। आई एम सेइंग रिपीटेडली, वन लाइनर टाइप ऑफ क्वेश्चंस लाइक एरर करेक्शन, फाइन, देन फिलर्स, देन सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर करेक्शन या सेंटेंस इंप्रूवमेंट आएगा, एक साथ नहीं आएगा, आई एम जस्ट मेंशनिंग द टॉपिक्स। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, देन आता है आपका वर्ड रीअरेंजमेंट, दीज आर द वन लाइनर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन से 1 मार्क्स, राइट? सो ये सारा क्वेश्चन आपको 15 क्वेश्चंस आपको 9 मिनट्स में खत्म करना ही है, 8 to 9 मिनट्स, मैक्सिमम 9 मिनट्स, फाइन। नाउ फॉर द रेस्ट, इसके बाद क्लोज टेस्ट आपका अगर आता है, क्लोज टेस्ट या सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ध्यान से सुनिए, क्लोज टेस्ट या सेंटेंस रीअरेंजमेंट, और प्रीलिम्स का रीअरेंजमेंट टफ नहीं रहता, मार्क माई वर्ड्स, इजी रहता है, फाइन, दिमाग ठंडा करके आपको अटेम्प्ट करना है सही से। क्लोज टेस्ट या रीअरेंजमेंट जो भी आएगा, इसके बाद इसको कितना टाइम देना है, क्या लगता है आपको, कितना टाइम देना है इसको? इसको ज्यादा से ज्यादा 3 to 4 मिनट्स, मैक्सिमम 4 मिनट्स, आई एम सेटिंग द लिमिट फॉर यू, मैक्सिमम 4 मिनट्स, फाइन। अगर रीअरेंजमेंट आपको टफ लगता है तो छोड़िए, कोई बात नहीं। नाउ कम्स आरसी, यहां पे भी कुछ बात आपको बताऊंगा। देखिए आरसी में क्या रहता है, सपोज सिनोनिम एंटोनिम बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो ये जो 9 मिनट्स है, इस 9 मिनट्स में वो वाला क्वेश्चन आपको करना चाहिए। आरसी में आप एक बार जस्ट आई वॉश कर लीजिए, ढूंढिए कि सिनोनिम एंटोनिम बेस्ड 1 या 2 क्वेश्चन है कि नहीं। आरसी में जो बोल्ड रहेगा सिनोनिम या एंटोनिम, वो सेंटेंस पढ़ के आपको पता चल जाएगा, ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इजी रहता है। प्रीलिम्स, फाइन, दिस इज प्रीलिम्स नॉट मेंस। सो क्या होता है, तो वो सिनोनिम या एंटोनिम बेस्ड क्वेश्चन जो आपका हो गया, तो उसमें 1 या 2 मार्क्स आपका आ गया, ठीक है। सो ये सब 9 मिनट्स में करना है। उसके बाद रीअरेंजमेंट या क्लोज टेस्ट 4 मिनट्स, ठीक है, फाइन, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ आरसी को आपको जो डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है तो टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। अगर घुमा के क्वेश्चन देता है, लाइक क्या होता है, कभी कभी देता है आपको ये थीम बेस्ड क्वेश्चन, राइट, व्हाट कैन यू इन्फर, व्हाट कैन बी द ऑथर्स व्यू पॉइंट, ये ऑथर्स व्यू पॉइंट वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना है, पहले छोड़ देना है, फाइन। डायरेक्ट क्वेश्चन जो दिया रहेगा, जो एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन देंगे
वही को पहले आपको अटेम्प्ट करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑथर्स व्यू पॉइंट वाला जो क्वेश्चन रहता है वो अटेम्प्ट नहीं करे तो अच्छा है। 29 आप कीजिए ना, 29 आउट ऑफ 30 स्कोर आपका तो अच्छा ही रहेगा। क्या प्रॉब्लम, क्या है, दिक्कत क्या है? बट इफ यू आर एबल टू क्रैक द ऑथर्स व्यू पॉइंट देन यू कैन इजिली आंसर इट, राइट? इफ यू आर एबल टू क्रैक द ऑथर्स व्यू पॉइंट देन वेल एंड गुड, बट प्लीज डू आंसर इट एट द लास्ट, क्योंकि उसके लिए आपको पूरा पैसेज पढ़ना चाहिए। फाइन, पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। फाइन, एंड दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू डोंट हैव टाइम। दैट इज द थिंग यू आर लैकिंग इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, बी इट प्रीलिम्स और मेंस, यू डोंट हैव टाइम, मच टाइम। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है? सो स्ट्रैटेजी बताने के लिए। सो व्हाट विल डू, पहले आरसी, जो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बताता हूं, आरसी का जो क्वेश्चंस रहता है, जस्ट हैव ए ग्लांस एट द क्वेश्चंस, एक बार आई वॉश कर लीजिए क्वेश्चंस, ठीक है? जब भी आप क्वेश्चंस देख लेंगे दिमाग में आपका रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन था। फाइन, नाउ व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द आरसी, फाइन, when you are going through the RC, be it economy based, be it any social issue based, or be it environment related, right? Whatever be the topic, fine. When you are going through the RC, what will happen? आपका दिमाग में रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन था, इसका आंसर यही है, तुरंत आप जाके उसका आंसर मार्क कर देंगे। सो ये एक ट्रिक होता है, मतलब आरसी पढ़ने से पहले एक बार क्वेश्चन देख लेना जरूरी है। फाइन, सो फॉर द आरसी विल टेक नॉट मोर देन 5 to 6 मिनट्स। अब सोचिए कितना टाइम आपका बच गया, कितना टाइम है आपके हाथ में, देखिए 9 मिनट्स, 4 मिनट्स गॉन, 13 मिनट्स गॉन, राइट? क्या है उसके बाद? 5 to 6 मिनट्स। इफ यू आर टेकिंग 5 मिनट्स, यू आर टेकिंग टोटल 18 मिनट्स आउट ऑफ 20। इफ यू आर टेकिंग 6 मिनट्स, 19 मिनट्स। सो 1 मिनट जो है वो बफर टाइम। व्हाट इज बफर टाइम, ये बताना पड़ेगा आपको। व्हाट इज द बफर टाइम? देखिए बफर टाइम क्या होता है, जो टाइम आपका ये माउस क्लिक करने में और क्वेश्चन स्क्रॉल करने में चला जाएगा, ठीक है? वो 1 मिनट आप बफर टाइम रखिए, ठीक है? यू नीड नॉट पैनिक अबाउट इट, राइट? सो वो छोड़िए, आप मान के चलिए एग्जाम मेरा 18 to 19 मिनट्स है, उसी टाइम में मुझको कंप्लीट करना है। वो बफर टाइम आपको अगर कुछ 1 मिनट में भी 20 या 30 सेकेंड्स आपको मिल जाता है तो वेल एंड गुड, फाइन। सो दैट 1 मिनट इज बफर टाइम, इट्स नॉट इन योर हैंड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू हैव 18 to 19 मिनट्स इन ऑल, understood? So this is how you can this is how you can attempt the English section to maximize your score. If you are if you are following the strategy which I had mentioned in my strategy video, then well and good, you can score 26, 27 easily in English. And see, one more thing is that जिसमें आपको doubt है, fine, if you are having doubt in any question, फाइन, उसको अटेम्प्ट नहीं करना है, लीव दैट। मिनिमाइज नेगेटिव मार्किंग, मिनिमाइज नेगेटिव मार्किंग, फाइन, मिनिमाइज नेगेटिव। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो जिसमें डाउट है वो छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है, ओके? यू नीड नॉट डू इट, फाइन। नाउ मैं बस थोड़ा नॉटशेल में बताऊंगा आपको, ठीक है? इन ए नॉटशेल आई विल जस्ट से द स्ट्रैटेजी। ये तो रहा आपका कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है? स्ट्रैटेजी का वीडियो जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फिर भी मैं थोड़ा बता दे रहा हूं। देखिए इंग्लिश में, फाइन, इंग्लिश में आपको अच्छा स्कोर करने का एक ही तरीका है। इफ यू नीड टू एक्सेल इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, then you need to have a grasp on 3 things. What are the 3 things, my friend? First one is vocabs. First one is vocabs. Are you getting my point? Second one, second क्या है आपका? Second one is grammar. Second one is grammar. Fine. ये मैं जनरल बता रहा हूं, ठीक है, सबके लिए।
Okay, and third one will be your reading. Your reading habit will help a lot. Fine, your reading. So vocabs, vocab पर बेस्ड क्या क्या आ सकता है, मैंने जो टॉपिक्स पहले बताया था उनमें से vocabs पर बेस्ड क्या क्या आ सकता है. एक तो डायरेक्ट vocab बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है, vocab पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आता ही है. ठीक है. अच्छा, उसके अलावा आपका हाँ फिलर्स, एनी टाइप ऑफ फिलर्स, क्लोज टेस्ट, फाइन, single fillers, double fillers, triple fillers, whatever may be the type of fillers. Fine. Then phrasal verbs. Yes, phrasal verbs. ठीक है. उसके बाद आपका आता है idioms. पिछले क्लास में मैंने कराया था. ठीक है. idiom based questions. Please do watch that video. idiom based. आजकल पूछ रहा है एग्जाम में. फाइन. अच्छा, उसके बाद जो आरसी का सिनोनिम एंटोनिम वाला क्वेश्चन होता है, सिनोनिम एंटोनिम. ठीक है. ये सब आ जाता है आपका वोकैब में. फाइन. इफ यू हैव अ गुड ग्रास्प ऑन वोकैब सेक्शन, फाइन. इफ यू आर गुड इन वोकैब्स, देन इन सब में आपका अच्छा मार्क्स आएगा. फाइन. विल बी एबल टू स्कोर वेल इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स. और वोकैब्स आपको कैसे अच्छा करना है, हाउ टू इम्प्रूव योर वोकैब. देखिए, मैं हमेशा कहता हूं रूट वर्ड्स अप्रोच फॉलो कीजिए. रूट वर्ड्स का बहुत सारा वीडियो मैंने अपलोड किया है. प्लीज डू वॉच द रूट वर्ड्स वीडियो. रूट वर्ड्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको चैनल पे. रूट वर्ड्स, ठीक है. डेली आप जो एडिटोरियल रीड करते हैं, आर्टिकल रीड करते हैं, ठीक है. रूट वर्ड्स तो एक हो गया रूट वर्ड अप्रोच, क्योंकि एक रूट वर्ड से आपका, इफ यू आर गोइंग थ्रू वन रूट वर्ड, उससे बहुत सारा वर्ड्स 10 to 12 वर्ड्स बन जाता है. फाइन. सो दिस इज अ वेरी इजी मेथड टू लर्न वोकैब्स. अच्छा, एक और मेथड आता है आपका जो रीडिंग, आर्टिकल रीडिंग से आपका जो वर्ड्स आप नोट डाउन करते हैं, नया वर्ड्स. हाँ, थिजोरस से आपको ऑनलाइन थिजोरस मिल जाएगा आपको गूगल में सर्च करने से. थिजोरस से आपको कंसल्ट करना है. फाइन. यू नीड टू कंसल्ट द थिजोरस एंड ट्राई टू फ्रेम सेंटेंसेस विद दोज वर्ड्स. फाइन. व्हेन यू आर रीडिंग डेली. अच्छा, ये तो हो गया. इडियम्स को तो मैंने बता दिया. इडियम्स का मेरा लास्ट जो क्लास है, लाइव क्लास, वो देख लीजिए. यू विल अंडरस्टैंड हाउ इजीली यू कैन लर्न द मीनिंग्स ऑफ द इडियम्स. मैंने एग्जाम्पल देकर, फाइन, एग्जाम्पल के सहायता लेकर, फाइन, आई हैव taught you the idiom based questions. Fine. So live class is available. Watch the recorded session of that class. ठीक है. idiom based questions. So idiom based जो मैंने सेशन लिया था, लास्ट सेशन. फाइन. सो ट्यूसडे को था वो क्लास. सो प्लीज डू वॉच इट. फाइन. मैंने डिटेल में बताया है कैसे वो इडियम्स को आप याद रख सकते हैं. एग्जाम्पल देकर मैंने बताया है. ठीक है. नाउ फॉर द ग्रामर पार्ट में आपको कैसे करना चाहिए, हाउ टू हैव ए गुड ग्रास्प ऑन ग्रामर का जो बुक्स आपको फॉलो करना है. मैंने बुक्स का लिस्ट जो है स्ट्रैटेजी वीडियो में मैंने दे दिया है. 21 मिनट जो वीडियो का 21 मिनट पे आप स्किप करके जाइएगा. प्लीज डू स्किप एंड स्टार्ट द वीडियो एट 21 मिनट्स फॉर द बुक लिस्ट. जो स्ट्रैटेजी टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन इंग्लिश का वीडियो है, उसमें 21 मिनट्स पे आप स्किप करके जाइए, बुक लिस्ट आपको मिल जाएगा. ठीक है, मैंने बताया है. और ग्रामर में आप देखेंगे, ये चीज देखेंगे डी. ओके. सो ये चीज देखेंगे कि एसबीआई का कुछ चीजें फेवरेट है टॉपिक्स. व्हाट आर दे? कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, स्पेशली फिक्स्ड प्रीपोजिशंस. ठीक है. फिक्स्ड प्रीपोजिशंस वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके. फिर आता है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फाइन, इन ग्रामर. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. एंड इफ यू हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस टॉपिक्स, प्लीज डू ट्राई टू रिवाइज. फाइन. अच्छा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया. उसके बाद एडवर्ब, एडजेक्टिव. दीज आर द मेजर टॉपिक्स ऑन विच एसबीआई जनरली फोकसेस, राइट. अच्छा, उसके बाद आपका हो जाएगा टेंस. फिर ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गया. उसके बाद आता है आपका नरेशन बेस्ड,
फाइन, बिकॉज नरेशन जो होता है उसका रूल्स आपको जानना पड़ता है, ठीक है. यू नीड टू नो द रूल्स ऑफ नरेशन. फाइन. देन वॉइस चेंज VC मैंने लिख दिया. उसके बाद बाकी जो टॉपिक्स रहता है, नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, बाकी जो टॉपिक्स है. ऑलराइट, आई गेट माय पॉइंट. अच्छा, ये तो हो गया आपका ग्रामर पार्ट. और रीडिंग, यस, रीडिंग विल हेल्प यू इन सॉल्विंग द RC एंड पैराजम्बल्स ऑल्सो. व्हाई? मेरा जो पैराजम्बल का वीडियो है, हाउ टू सॉल्व पैराजम्बल्स इजीली, एक वीडियो है, देख लीजिएगा. आई हैव मेंशन्ड 2 processes, 2 ways on how to solve the पैराजम्बल्स. क्या है? रीडिंग करने से वो जो टेक्निक है वो आपका डेवलप हो जाएगा. क्या टेक्निक क्या है? एक है क्रोनोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी. मैंने क्रोनो लिख दिया, ठीक है. क्रोनोलॉजी क्या है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, एक के बाद एक जो आ रहा है आपका, ठीक है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी. ओके, फाइन. द सीक्वेंस इन विच द इवेंट्स आर ऑकरिंग, ये आपका रीडिंग से डेवलप हो जाएगा. इफ यू आर रीडिंग द एडिटोरियल्स आर्टिकल्स डेली, ये आपका रीडिंग से डेवलप हो जाएगा. एक और अप्रोच क्या है? कीवर्ड्स अप्रोच, राइट? कीवर्ड्स. सो दीज आर द 2 टेक्निक्स टू सॉल्व पैराजम्बल्स. और ये दोनों टेक्निक आपको कैसे ग्रास्प में लाना पड़ेगा? बाय रीडिंग. फाइन. सो ये रहा हमारा जनरल स्ट्रैटेजी टू फॉलो फॉर इंग्लिश. और मैंने तो बताया है कैसे ऑर्डर ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, तो मैंने बताया है. फाइन. सो ये बफर टाइम आपके हाथ में नहीं है, ये माउस क्लिक करने में, फाइन, क्वेश्चन स्क्रॉल करने में चला जाएगा. सो 18 to 19 minutes is your time which is in your hand. Please do follow it. फाइन. सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव क्लास में मिलते हैं. और ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा हर एक दोस्तों के साथ. फाइन. एंड इन एवरी ग्रुप, because many people are facing the same problem in English, how to attempt the section, what is the order of attempting the section. And yes, if you're new to this channel, please do subscribe to this channel, because जो भी वीडियो आएगा आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. फाइन. सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय.